Good morning, students. I am Iqbal Rasool. Today's our topic is physiology of the intestine, that is small intestine and large intestine. It is a word that is Latin word. Intestine is a Latin word which means internal and indeed. This is for both small and for large intestines, and this internal or this intestine is fill whole of the abdominal cavity. Now we firstly look here small intestines. Small intestines जो होते हैं, this small intestine is takes the food from stomach. वहां से जो फूड आता है उसका नाम है chyme. And here in case of small intestines here occurs complete digestion. And absorption. And what is the size of the small intestine? Is the size of the small intestine is 3.05 meters long in case of living human being. And in case of अगर जब डेथ होती है, डेथ होने के बाद the size of small intestine gets doubled, that means it is approximately 6 meters long in dead. Why? Because the small intestines are made of smooth muscles, they lose the tool, thus the size gets increased. And if the length of the small intestine is 3.5 meters, why they are known as small intestines? This is because only on the base of diameter, this diameter is lesser than that of large intestines. Thus these are known as small intestines because the diameter in case of small intestines is less as compared to large intestines. उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ small intestine, from the portion from the proximal end, that is the end which is facing towards the stomach, to the end which is facing towards the large intestine. This small intestine is divided into three main parts, that is one part duodenum, number second jejunum, number third ileum. Now duodenum. This duodenum is the shortest part in case of small intestines and is of 25.4 centimeters. ठीक है. और ये जो duodenum है, this is the structure of the duodenum. Above this here is the stomach. It joins with the stomach at the pyloric sphincter. ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद क्या होता है, इट फॉर्म्स अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर. ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, किसके साथ बनाता है? यहां से पेनक्रियाज है, रेड पोर्शन हियर इज पेनक्रियाज, और इसके साथ ही कंबाइन होने के बाद यहाँ पे एक सी टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यूडेनम का. एंड ड्यूडेनम हैज फोर मेन पार्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन पार्ट्स. वन पार्ट इज सुपीरियर पार्ट, another one is descending, third one horizontal, and ascending. These are the four main parts of the duodenum. Now in case of duodenum, वहां पे एक, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, यहाँ पे एक हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है. ये हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला क्या होता है? ये एम्पुला होता है यहां से, इट इज फॉर बोथ. यहां से पेनक्रियाज है, यहां पर हमने जो ये लाइन बनाई है, यहाँ पे जो हमने जो डक्ट बनाया है, इट गोज टू लिवर. ये लिवर तक जाता है और लिवर से वहां पर लिवर से बाइल जूस आता है, और यहां से पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है.
These both the ducts combine at the position that is known as hepatopancreatic ampulla. वहां से क्या होता है, वहां से बोथ लिवर से बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है, एंड दे बोथ एंटर इनटू द ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में वो एंटर होते हैं. उसके बाद जो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला जो होता है, इट एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम एट ए पॉइंट. यहां पे एक वोल्केनो शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, वोल्केनो शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज वोल्केनो शेप्ड ओपनिंग यहां पे होती है, जिसका ड्यूडेनम पेपिला. दिस इज रेस्पॉन्सिबल, यहां से जो ओपनिंग होती है, बोथ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, यहां से लिवर से भी डक्ट आता है और पेनक्रियास से भी डक्ट आता है. दीज गेट रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम एट दिस ड्यूडेनल वॉल. वहां पे एक ओपनिंग होती है जिसका जिसका स्ट्रक्चर होता है वोल्केनो शेप्ड, एंड इसका नाम होता है ड्यूडेनम पेपिला. आफ्टर दैट यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, दैट इज हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, हेपेटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर, जिसका दूसरा नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऊडी. इसका जो रोल क्या होता है, ये रोल यहाँ पे होता है, दिस स्फिंक्टर अलाउज बोथ लिवर्स फ्रॉम बोथ जूस फ्रॉम द लिवर, दैट इज बाइल जूस, एंड द एंजाइम्स एंड द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास टू मूव टुवर्ड्स द ड्यूडेनम. दैट इज जूजेनम, सेकंड पोर्शन. ये जो जूजेनम है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.9 मीटर्स लॉन्ग, और ये जो जूजेनम है, it is a Greek word that means empty. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन ज्यादा नहीं होती है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन जूजनम एंड यूरियम. यहां पे क्लियर डिमार्केशन नहीं होती है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थर्ड पोर्शन दैट इज यूलियम. ये जो यूलियम होता है, दिस यूलियम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, approximately 1.8 meters long, and this यूलियम has most vascularized folds और यहाँ पे ये वेस्कुलराइज्ड फोल्ड जो होते हैं, यहाँ पे उनका दूसरा नाम होता है म्यूकोजल फोल्ड्स. दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. उसके बाद क्या होता है, ये जो इलियम जो होता है, इट फाइनली कंबाइन्स विद द केकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स. ठीक है. और यहां पे भी और एक स्फिंक्टर होता है, यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, जिस स्फिंक्टर का नाम है इलियो केकल स्फिंक्टर. इस स्फिंक्टर का क्या रोल होता है, दैट इट अलाउज द फूड, इट अलाउज द चाइम टू मूव फ्रॉम द यूरियम टू केकम, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल की बात करेंगे, यहां पर भी 4 वाल्स होते हैं, 4 वाल्स आर हियर प्रेजेंट. लेकिन यहाँ पे जो 4 वाल्स होते हैं, यहाँ पे जो म्यूकोसा होता है और सब म्यूकोसा होता है, यहाँ पे उनकी जो यूनिक फंक्शन है, जिस यूनिक फंक्शन की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोल्ड्स होते हैं. दीज फोल्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एंड 600 टाइम्स मोर फोल्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे. लेकिन दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. और इनके जो टाइप्स होते हैं, एक होता है सर्कुलर फोल्ड, दूसरा होता है विलय, और तीसरा होता है माइक्रोविलय. These are the 3 main folds in case of small intestines. लेकिन ये जो सर्कुलर फोल्ड जो होते हैं, these are the deep
ridges. These are the deep ridges of mucosa and submucosa. ठीक है, ये डीप रीजन होते हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के, लेकिन यहाँ पे उनकी वजह से सर्कुलर जो होते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्कुलर फोल्ड्स, यहाँ पे क्या होता है, जब ये चाइम जो होता है व्हेन इट एंटर्स इनटू द सर्कुलर फोल्ड, जब ये सर्कुलर फोल्ड्स में होता है, यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द फूड जो होती है वो सर्कुलर होती है, वो स्पाइरल होती है, और जब ये स्पाइरल होती है उसमें क्या होता है, ये जो फूड होता है ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉल सेगमेंट्स में, और सेगमेंट्स में जब ये कन्वर्ट होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वहां पे मैक्सिमम सरफेस एरिया गेट्स इंक्रीज्ड एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम इन सर्कुलर फोल्ड जो हम बता रहे हैं, सर्कुलर फोल्ड्स में वहां पे होते हैं विलस, वो विलस क्या होते हैं, दीज आर हियर लाइक projections which are vascularized, ठीक है। सर्कुलर फोल्ड्स में ये क्या बनाते हैं, फरो लाइक स्ट्रक्चर, और दिस फरो लाइक स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। और अगर हम ये विलस जो होता है, विलस इज ए प्लूरल, अगर हम इसका सिंगुलर देखें दैट इज विलस, ये जो विलस होता है विलस इज ए सिंगुलर ऑफ द विलय, एंड दिस अगर हम एक विलस की बात करेंगे, इट हैज वन मैन्यूल, वन आर्टीरियोल एंड वन लैक्टियल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर यहां पर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे या प्रोटीन की बात करेंगे, दीज आर डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फैट्स की बात करेंगे, फैट की जो एब्जॉर्प्शन होती है, फैट्स की एब्जॉर्प्शन थ्रू लैक्टियल की वजह से होती है, थ्रू लैक्टियल फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी नोटेड। उसके बाद जो है दैट इज माइक्रोविलाई, ये जो माइक्रोविलाई होते हैं दीज आर स्मॉलर देन विलाई, ठीक है, एंड दीज आर इन सिलेंड्रिकल इन नेचर, cylindrical in nature or shape, and these are present on the plasma membrane of mucosa, mucosal epithelial cells, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम इस विलय, ये इतने छोटे होते हैं कि हम एक माइक्रो विलय नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे वहां पे उनका जो होता है, वहां पे मास लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पे वो मास लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, दे फॉर्म ब्रिसल्स, ये जो ब्रिसल्स जो होते हैं उनका हम फाइनली जो नाम देते हैं दैट इज ब्रश लाइक, ब्रश बॉर्डर जो इसका नाम आता है, दीज आर द ब्रश बॉर्डर, दे फॉर्म द ब्रश बॉर्डर इन केस ऑफ small intestines, and these are also responsible for the absorption of the food and minerals। के बाद अगर हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में जो म्यूकोसा होता है, द म्यूकोसा बिटवीन विलाई, ये जो म्यूकोसा बिटवीन विलाई जो होता है वहां पे बहुत सारे डीप क्रेविसेस होते हैं, वहां से ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे जो क्रेविसेस होते हैं, डीप क्रेविसेस जो होते हैं, इसका नाम होता है क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, these are responsible for the release of the for the secretion of intestinal juice which is approximately 0. अगर हम एक डे की बात करेंगे, हर एक डे में 0.9 to 1.9 liters of the intestinal juice is released and it is slightly alkaline in nature, alkaline in nature। और ये जो इट इज, ये जो इंटेस्टाइनल जूस जो यहाँ से होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ म्यूकस एंड
वाटर। अगर हम ड्यूडेनम की बात करेंगे, ड्यूडेनम में क्या होता है, वहां पे जो सबम्यूकोसा होता है, सबम्यूकोसा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ आल्सो म्यूकस, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स म्यूकस होता है, कॉम्प्लेक्स म्यूकस, ठीक है। और ये किस ग्लैंड से निकलता है, यहाँ पे जो ग्लैंड का नाम होता है दैट इज ड्यूडनल ग्लैंड, ठीक है। एंड इस ये जो म्यूकस, सब कॉम्प्लेक्स म्यूकस यहाँ पे जो होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स। व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे इनकी वजह से जो एसिडिक इफेक्ट ऑफ चाइम जो होता है, and this acidic effect gets neutralized, that is this mucus plus bicarbonate is act as vapors। ना उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करेंगे, इनके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोथ डाइजेशंस occurs, that is mechanical and chemical। now firstly we will hear to that is mechanical portion। ये जो मैकेनिकल पोर्शन होता है, ये जो स्मूथ मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये जो स्मूथ मसल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे दो टाइप्स की मैकेनिकल डाइजेशन होती है। पहले होती है सेगमेंटेशन और दूसरी होती है माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो चाइम जो रिलीज होता है स्मॉल स्टमक से, जब ये स्टम इंटेस्टाइन में एंटर होता है, वहां पे उसके सेगमेंट्स बन जाते हैं। सेगमेंट्स क्यों बन जाते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया and for increasing the surface area, this is responsible for the absorption of more food from and nutrients from this substance from the food, ठीक है। वहां से absorption ज्यादा होती है, और ये सब सेगमेंटेशन जो होती है, that is food gets converted into the segments, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये जब सेगमेंटेशन होती है, वहां पे absorption भी होती है। when the absorption of food occurs, absorption of food occurs, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स गेट इज डिलेटेड, वहां पे उनका साइज जो होता है वो डिलेट होता है। एट द टाइम ऑफ डिलेशन वहां पे क्या होता है, वहां पे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मोटिलिन। दिस मोटिलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द दैट इज मोटिलेटिंग माइग्रेटिंग मोटिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये रोल होता है मोटिलिन का। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनरली यहाँ पर भी वही पेरिस्टालिसिस होती है, पेरिस्टालिसिस यहाँ पर भी होती है। जिस तरीके से ईसोफेगस में पेरिस्टालिसिस होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है। और इसके बाद यहाँ पे सबस्टेंस जो होता है, पहले वो क्या होता है, पहले कंट्रैक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो फूड सेगमेंट्स की तरफ सेगमेंट्स में जाता है, आगे जाता है, पीछे कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंप्लीटली, दिस प्रोसेस माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे ये होता है। और अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो चाइम जो होता है, ये 90 और 90 टू 120 मिनट्स रहता है इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये चला जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स में। और जब ये यहां से when it enters into the large intestines, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है, इलियो केकल वैल्यू और स्फिंक्टर, ठीक है। दिस इज इलियो केकल वैल्यू जो होती है, इट अलाउज ओनली फूड टू मूव फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू large intestines, and the contraction and relaxation of यहां पे जो कंट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होती है, इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस एंड हार्मोन्स। उसके बाद जो दूसरा है डेट इज केमिकल पोर्शन।
केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे केमिकल्स का रोल होता है। बिफोर वी प्रोसीड एड, यहाँ पर भी फिर से बताऊंगा, इनके साथ बकल कैविटी वहां पर भी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाज डन, एंड इन केस ऑफ स्टमक वहां पर प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, डेट इज कार्बोहाइड्रेट की भी कंप्लीट डाइजेशन, प्रोटीन की भी कंप्लीट डाइजेशन। लेकिन जो फैट होता है, हमने बकल कैविटी में टू सम एक्सटेंट वहां पर उनकी जो एमल्सिफिकेशन पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे वहां पे जो एंजाइम था लिंगुअल लाइपेज, बट इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स हियर इज द मेन पार्ट, हियर इज द मेन पोर्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ, दैट इज डाइजेशन ऑफ द फैट्स। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था, दैट इज हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है, यहाँ इससे क्या होता है, यहाँ से दो जूसेस आते हैं, एक होता है बाइल जूस, ठीक है, और दूसरा आता है दैट इज पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। दीज आर द टू जूसेस विच आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आप याद रखो। और उसके बाद तीसरा जो जूस होता है, तीसरा जो जूस होता है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, एंड इंटेस्टाइनल जूस यहां से निकलता है। वो इंटेस्टाइनल जूस कहां से आता है, वो इंटेस्टाइन से आता है, और इसका दूसरा नाम है स्यूकस एंट्रिकस। लेकिन ये बहुत इंटेस्टाइनल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी एंजाइम, इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं। अब हम पहले इंटेस्टाइनल जूस को लेंगे, इसमें एंजाइम्स देखेंगे, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस फूड को किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। पहला हम लेंगे दैट इज अल्फा ड्रैक्स्ट्रिनेज, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसकी फंक्शन क्या होती है, जो अल्फा ड्रैक्स्ट्रिन जो होते हैं इस पे वो एक्ट करता है, एंड दे फॉर्म एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा ड्रैक्स्ट्रिनेज acts on the alpha dextrinase and these alpha dextrins are converted to the glucose. नेक्स्ट एंजाइम इन केस ऑफ स्यूकस एंट्रिकस में जो नेक्स्ट एंजाइम जो होता है हम पढ़ेंगे दैट इज एंटीरियो पेप्टाइडेज। इनके साथ स्टमक वहां पर भी प्रो एंजाइम्स थे, लेकिन यहाँ पर भी या इनएक्टिव एंजाइम्स थे। अगर यहाँ पर भी देखेंगे इनके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, यहाँ पर भी इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर भी एक्टिव प्रो एंजाइम्स होते हैं। दीज आर एक्टिवेटेड बाय द अदर एंजाइम्स, वो एक्टिवेट दूसरे एंजाइम से होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंटीरियर पेप्टाइडेज जो होता है, इट एक्टिवेट्स द, इसको ये एक्टिवेट किसको करता है, दैट इज ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है, बाय द एंटीरियर पेप्टाइडेज। दिस ट्रिप्सिनोजन इज इनएक्टिव आर प्रो एंजाइम, ठीक है, and it gets activated by anterior peptidase to form active trypsin, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन जो आता है, ट्रिप्सिन की फंक्शन क्या है, प्रोटीन जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टाइड्स। फिर से बता रहा हूं यहां पर क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, हमने प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में पढ़ी थी, लेकिन वहां पे 100 प्रोटीन की डाइजेशन नहीं हुई थी, जो बाकी प्रोटीन रह गए थे। अगर हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल इनके साथ स्टमक, वहां पे 90% प्रोटीन डाइजेस्ट हुए थे, और जो 10% जो प्रोटीन है वो किस में डाइजेस्ट होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं डाइजेस्ट बाय द ट्रिप्सिन। दिस कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था जब माउथ में डाइजेशन हुई थी, वहां पे अल्फा डेक्स्ट्रिन्स की फॉर्मेशन होती है, और अल्फा डेक्स्ट्रिन्स की हमने डाइजेशन पढ़ी है। उसके बाद जो वहां पे डाइसैकराइड्स बनते हैं, दैट इज माल्टोज की फॉर्मेशन होती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम का नाम है दैट इज माल्टेज, ये जो माल्टेज जो होता है इट एक्ट्स ऑन द माल्टोज, एंड दिस माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर हम दूसरा एंजाइम लेंगे दैट इज लैक्टेज, लैक्टेज जो होता है इट एक्ट्स ऑन द लैक्टोज, एंड दिस लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज,
ठीक है। उसके बाद और एक एंजाइम होता है दैट इज सक्रेस। द सक्रेस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द conversion of or the breakdown of sucrose into glucose प्लस फ्रक्टोज। यहां पे क्या होता है सिंपली हम बताएंगे। पहले पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स की कन्वर्जन होती है। अगर हम कन्वर्जन देखेंगे, हम माउथ में जो कन्वर्जन हुई थी वहां पे पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च वाज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड अल्फा डेक्सट्रोज। सिमिलर इज द केस हियर। उसके बाद जो हमने वहां पे जो माल्टोज आया था, माल्टोज जो आया था, अल्फा डेक्सट्रोज जो आए थे वो डाइसैकेराइड्स थे। Simply, that is polysaccharides gets converted into disaccharides, and these disaccharides get converted into the monosaccharides. ठीक है, just like these are all the monosaccharides. उसके बाद जो दूसरा एंजाइम जो नेक्स्ट एंजाइम है, these are nucleotidases and phosphatase. ठीक है, phosphatase। उसके बाद उनकी जो फंक्शन क्या होती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करते हैं ये फास्फेट्स में प्लस नाइट्रोजनस बेसिस में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और पेंटोसिस में। उसके बाद और एक एंजाइम होता है दैट इज पेप्टाइडेसिस। ये जो पेप्टाइडेसिस होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे ये जो पेप्टाइडेसिस है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अमाइनो पेप्टाइडेसिस और दूसरा होता है डाइपेप्टाइडेसिस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम पेप्टाइड को लेंगे, जो पेप्टाइड कहां से आया, स्टमक से आया। अभी जो हमने प्रोटीन की भी डाइजेशन की थी वहां से भी पेप्टाइड आया। दीज पेप्टाइड्स आर एक्टेड बाय अमाइनो पेप्टाइडेसिस। मैं शॉर्ट फॉर एपी लिखूंगा, अमाइनो पेप्टाइडेस, एंड दीज आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। लेकिन यहां पे उसके बाद जो पेप्टाइड जो दूसरा लेंगे, अगर हम पेप्टाइड्स की बात करेंगे उसके उनपे भी फंक्शन करता है दैट इज डाइपेप्टाइड्स। डीपी में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, दीज आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू द अमाइनो एसिड्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अमाइनो पेप्टाइडेसिस भी है, डाइपेप्टाइडेसिस भी है। वाई अमाइनो पेप्टाइड्स है, वाई डाइपेप्टाइडेसिस। पहले हम अमाइनो पेप्टाइडेस की बात करेंगे, डाइपेप्टाइडेस खुद समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पेप्टाइड के दो एंड होते हैं, एक होता है अमाइनो एंड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एंड। पहले हम अमाइनो एसिड की बात करेंगे। यहाँ पे तो ये जो अमाइनो पेप्टाइडेस जो होते हैं, दीज एक्ट ऑन द अमाइनो टर्मिनल। ये एक्टिव अमाइनो टर्मिनल पे एक्ट करते हैं एंड पेप्टाइड को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। और दिस डाइपेप्टाइड डायरेक्टली कन्वर्ट्स पेप्टाइड्स इनटू द अमाइनो एसिड्स। This was about the intestinal enzymes, this was about the succintricus enzymes। लेकिन ये जो सारे enzymes हैं, these are brush border enzymes। ठीक है, जो आपको पता है, जो अभी मैंने बताया, जो ब्रश बॉर्डर क्या होता है, these are all ब्रश बॉर्डर enzymes। उसके बाद जो केमिकल पोर्शन में जो नेक्स्ट है दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, लेकिन ये जो पैनक्रियाटिक जो जूस है इट आल्सो कंटेन सो मेनी एंजाइम्स। ठीक है, पहला हम लेंगे यहां पे दैट इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। ठीक है, दिस कार्बोक्सी पेप्टाइडेस आल्सो एक्ट ऑन पेप्टाइड्स एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, यहाँ पे मैं सीपी लिखूंगा, यहाँ पे जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस जो होते हैं, these act on the carboxylic end of the peptide and they convert the peptides into the amino acids। उसके बाद जो दूसरा होता है that is chymotrypsinogen। chymotrypsinogen, ये जो chymotrypsinogen है, this is an inactive enzyme and this is activated by trypsin।
and it is formed now active enzyme. It forms now active enzyme, that is chymotrypsin. ठीक है, this inactive enzyme and this is now active enzyme. काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की फंक्शन ये होती है, अगर कोई भी प्रोटीन अब प्रेजेंट होगा, अगर कोई भी प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होगा इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, दिस काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे इस पे एक्ट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द इट नाउ इन पेप्टाइड्स. ठीक है, उसके बाद और एक एंजाइम होता है, दैट इज थर्ड पोर्शन. वहां पे जो थर्ड एंजाइम होता है, दैट इज इलास्टेस. This also acts on the proteins and converts them into peptides. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद और एक एंजाइम है, दैट इज न्यूक्लियसिस. लेकिन ये जो न्यूक्लियसिस होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के न्यूक्लियसिस होते हैं. पहला होता है राइबोन्यूक्लियस और दूसरा होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियस? इट एक्ट्स ऑन द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. दिस राइबोन्यूक्लियस, आरएन में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, दिस राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस राइबोन्यूक्लियस एक्ट्स ऑन द राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, उसके बाद जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो होता है, इट एक्ट्स ऑन द डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखूंगा डी आर, डी एन, सॉरी डी एन, deoxyribonuclease. It acts on the DNA and converts it into the nucleotides. उसके बाद जो नेक्स्ट होता है पेनक्रियाटिक जूस है, दैट इज पेनक्रियाटिक amylase. ठीक है, the function of, what is the function of pancreatic amylase? It acts on the starch and converts the starch into alpha dextrins and maltose. उसके बाद जो अल्फा डेक्स्ट्रिन यहाँ पे प्रिपरेशन अल्फा डेक्स्ट्रिन की हुई है या माल्टोज बन जाता है यहाँ पे, दिस माल्टोज फर्दर एक्टिव बाय द माल्टेज, दिस अल्फा डेक्स्ट्रिन इज फर्दर एक्टिव बाय द अल्फा डेक्स्ट्रिनेस एंड दीज आर कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसके बाद और एक एंजाइम जो होता है पेनक्रियाटिक जूस में, वो होता है पेनक्रियाटिक लाइपेस. These lipases these act on the fats and convert into the fatty acids. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक लाइपेज, बिफोर वी प्रोसीड एंड, यहाँ पे जो बाइल का रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल? बाइल इज द रोल ऑफ बाइल इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. उसके बाद फैट्स की इजी, यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज को इजी होता है कि डाइजेस्ट फैट्स को कन्वर्ट करना होता है फैटी एसिड्स. इट becomes easy now pancreatic lipase to break down the fats into the amino fatty acids after the emulsification by bile juice. उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is large intestine. जो ये लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, दीज आर द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन्स का रोल क्या होता है? इट इज ओनली फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. ठीक है, और क्या होती है? और यहाँ एंड एब्जॉर्ब्स vitamins. Also, this large intestine is involved in the formation of feces or stool. लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, these start from appendix to anus. Why they are called large intestines? Because due to the large in diameter.
large in diameter. This diameter is approximately 3 inches. And the large intestine is divided into it has so many subdivisions. The main subdivisions are cecum, first one cecum, next colon, next rectum, and finally anus. These are the subdivisions of the large intestines. Number one, cecum. This cecum is the first part in case of large intestines, and here absorption of water and salts occurs. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है that is colon. This cecum now when bends, when cecum bends, it forms colon. उसके बाद क्या होता है रेक्टम. ये जो रेक्टम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेक्टम. रेक्टम में फाइनली जो अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं, फूड के अनडाइजेस्टिव वेस्ट जो होते हैं, दीज आर स्टोर्ड इन रेक्टम. टेम्पोररी स्टोरेज यहाँ पे उनकी होती है. उसके बाद जो लास्ट पोर्शन है डेट इज एनल कैनाल. ये जो एनल कैनाल जो होती है, ये जो स्टोर्ड फूड, टेम्पोररी स्टोर्ड फूड विच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इज नाउ ट्रांसपोर्टेड इनटू द एनल कैनाल, एंड दिस एनल कैनाल इज आउटसाइड द abdomino pelvic cavity. And this anal canal finally opens to the outside by anus, and the undigested food is now transported. This is now ingested outside the body through anus, and this anus has two sphincters or two valves. ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक का नाम होता है इंटरनल स्फिंक्टर, ये इंटरनल वैल्व. ठीक है, this internal valve is made up of smooth muscles, and the contraction of internal valve is involuntary. उसके बाद जो नेक्स्ट है डेट एक्सटर्नल स्फिंक्टर और valve. It is made up of skeletal muscles. It consists of skeletal muscles, and here the movement is that is voluntary. Almost both the valves, almost both the sphincters when closed, except at the time of defecation. And in case of large intestines, वहां पे क्या होता है, before we proceed, small intestines में 90% of water is absorbed. ठीक है, and the rest 10% is absorbed in large intestines. ठीक है, यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आया है, इनके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू लार्ज इंटेस्टाइन्स जो फूड आता है, यहां पे लिक्विड फॉर्म में होता है या सेमी लिक्विड. आफ्टर दैट इट गेट्स कन्वर्ट, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स व्हाइल इट इज कन्वर्ट इनटू द सेमी लिक्विड फॉर्म. ठीक है, दैट इज इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल देम सेमी सॉलिड, जिसका नाम होता है स्टूल. एंड दिस स्टूल इज नाउ transported, this now is now defecated, is now ingested through the anus. What is this stool? This stool is undigested food, undigested products of the food which are released by the large intestines through the opening that is anus. This was about the our today's lecture, that is the physiology of small intestines and physiology of large intestines. Now we will conclude here our today's topic. Allah Hafiz.